بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی ہسٹری بتانے والے ہیں کہ جس عورت کو بھلے ہی اردو ہندی زبان بولے جانے والے علاقے میں رہنے والے لوگ نہ جانتے ہو، لیکن عرب علاقے میں رہنے والے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مصر کی ہسٹری کے سب سے خوبصورت ملکہ یعنی کہ کلیوپٹرا کے بارے میں، جس نے ایک لمبے وقت تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر کی ریاست پر حکومت کی تھی۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ کلیوپٹرا کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی خوبصورتی یا پھر اس کا ایک لمبے وقت تک ایک سلطنت پر راج کرنا نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے دوسرے اہم پہلو تھے۔ اس ملکہ نے جہاں ایک طرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے دو سگے بھائیوں سے شادی کی، تو وہیں دوسری طرف موقع ملنے پر انہی دونوں سگے بھائیوں کو ہی قتل کروا دیا جن سے اس نے شادی کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، مصر کے اس حسین ملکہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسے کام کیے تھے کہ جن کے بارے میں سن کر آپ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ اس ملکہ کی شہرت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ملکہ کو گزرے ہوئے آج لگ بھگ 2000 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ہسٹری کو لوگ اتنے ہی شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جتنی شوق کے ساتھ آج سے کئی سو سال پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو مصر کی ملکہ کلیوپٹرا کے اوپر بہت ساری موویز اور ٹی وی سیریلز بنائے جا چکے ہیں، لیکن 1963 میں بننے والی مووی سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ 1963 میں کلیوپٹرا کے اوپر جو مووی بنائی گئی تھی وہ ہسٹری میں اس وقت تک کی دنیا کی سب سے مہنگی مووی ثابت ہوئی تھی۔ دوستو اب اگر بات کی جائے کہ کلیوپٹرا کی ریئل ہسٹری کے بارے میں، تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی آج سے لگ بھگ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 323 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 323 سال پہلے، دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے ایک حکمران سکندر کی موت ہوئی تھی۔ سکندر کی موت کے بعد کیونکہ اس کا کوئی بھی زندہ وارث موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کی پوری سلطنت اس کے سارے گورنرز نے آپس میں ہی بانٹ لی تھی، اور اس طرح سے مصر کا پورا علاقہ سکندر اعظم کے ایک وفادار گورنر جس کا نام پٹالومی تھا اس کے حصے میں آیا، اور بس یہیں سے مصر میں ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا، ایک ایسی حکومت کے جس نے اگلے 300 سالوں تک مصر پر راج کیا تھا۔ دوستو ویسے تو مصر کی سلطنت میں شروع میں تو بہت اچھے اور عقل مند حکمران آئے، لیکن پھر آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا اس سلطنت میں آنے والے حکمران بھی عیاش اور بزدل ہونے لگے، اور اب آہستہ مصر کی یہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب پوری دنیا میں روم کی سلطنت کا بول بالا تھا۔ اس دور میں روم سلطنت دنیا کے ایک طاقتور سلطنت بن کر ابھری تھی، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں کو اپنی سلطنت کے اندر سمیٹی جا رہی تھی۔ مصر کی کمزور سلطنت کے بزدل بادشاہوں کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ بھی اب روم سلطنت سے نہیں بچ پائیں گے، تو ان لوگوں نے روم سے لڑنے کی تیاری کرنے کے بجائے انہیں اپنا خزانہ دینا شروع کر دیا، اور مال و دولت دکھا کر انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، اور اس طرح سے وہ لوگ اپنی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن دوستو اس طرح سے بھلے ہی مصری کی سلطنت کی حفاظت تو ہوتی رہی، لیکن آہستہ وہ حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت کلیوپٹرا کا باپ سلطنت کی گدی پر بیٹھا اس وقت تک مصر کی یہ سلطنت حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب چکی تھی۔ کلیوپٹرا کے فادر کی موت کے بعد اس کی بڑی بیٹی یعنی کلیوپٹرا اور اس کا چھوٹا بھائی جس کا نام پٹالومی تھا، وہ دونوں مصر سلطنت کے اگلے وارث بنے، یعنی دونوں مل کر مصر سلطنت کے اگلے حکمران بنے۔ اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ حالانکہ دوستو
सगे भाई बहन की शादी के बारे में सुनकर हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये भले ही आज के दौर में एक हैरान कर देने वाली बात हो, लेकिन इस दौर में मिस्र की तहजीब में इसे एक जायज काम समझा जाता था, यानी उसे एक सही और अच्छा काम समझा जाता था। इस काम को अक्सर अपनी सल्तनत को बचाने के लिए किया जाता था, ताकि हमारी सल्तनत शादी करने की वजह से किसी दूसरे इंसान के हाथ में ना जा सके। दोस्तों, क्लेयोपेट्रा और उसके छोटे सगे भाई की ये शादीशुदा जिंदगी कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छी चलती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। ये छोटा सा झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता इतना खतरनाक रूप लेता चला गया कि एक वक्त तक ऐसा भी आया कि जब क्लेयोपेट्रा को अपने छोटे भाई से जान बचाने की खातिर रातों रात मिस्र को छोड़कर सीरिया की तरफ भागना पड़ा। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में ही दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी रोम सल्तनत के दो सिपह सलारों में आपस में लड़ाई चल रही थी, जिनमें से एक का नाम पोपी था और दूसरे का नाम जूलियस सीजर था। रोम सल्तनत की इस जंग में पोपी की हार हुई। वो जूलियस सीजर से अपनी जान बचाने की खातिर भागता हुआ मिस्र पहुंच गया और मिस्र पहुंचकर मिस्र के हुक्मरान यानी क्लेयोपेट्रा के भाई से ये रिक्वेस्ट की कि वो उसकी जान बचाए, लेकिन क्लेयोपेट्रा के भाई ने उसकी जान बचाने के बजाय उसे कत्ल करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ पोपी का पीछा करते हुए जूलियस सीजर भी मिस्र में पहुंच गया था। मिस्र पहुंचकर कुछ दिन रुकने के बाद जब जूलियस सीजर को इस बात की खबर हुई कि उसका दुश्मन पोपी तो पहले ही मारा जा चुका है, तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने खुशी में कुछ दिन और मिस्र में रोकने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में छुपती छुपाती फिर रही क्लेयोपेट्रा को जब उस बात की खबर हुई कि रोम सल्तनत का एक गवर्नर जिसका नाम जूलियस सीजर है वो मिस्र के महल में आया हुआ है, तो उसने फौरन अपना एक नया प्लान तैयार किया और क्लेयोपेट्रा छुपती छुपाती किसी भी तरह से मिस्र के महल के इस कमरे में पहुंचने में कामयाब हो गई थी कि जिस कमरे में रोम सल्तनत का ताकतवर गवर्नर यानी जूलियस सीजर ठहरा हुआ था। जैसे ही क्लेयोपेट्रा पर जूलियस सीजर की पहली नजर पड़ी तो वही हुआ कि जो क्लेयोपेट्रा चाहती थी, यानी जूलियस सीजर पहली नजर में ही क्लेयोपेट्रा की खूबसूरती का दीवाना हो गया और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। लिहाजा क्लेयोपेट्रा ने अपने आप को जूलियस सीजर के हवाले करने से पहले मिस्र का तख्त हासिल करने की शर्त रखी, जिसकी वजह से जूलियस सीजर ने भी क्लेयोपेट्रा को इस बात का यकीन दिलाया कि वो उसे हर हाल में मिस्र की गद्दी पर बिठा कर रहेगा। जब क्लेयोपेट्रा और जूलियस सीजर की इस गठजोड़ की खबर उसके भाई तक पहुंची तो उसने फौरन इन दोनों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और ये हुक्म जारी किया कि क्लेयोपेट्रा और जूलियस सीजर को हर हाल में कत्ल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, भला मिस्र जैसी एक कमजोर सल्तनत का हुक्मरान रोम जैसी मजबूत सल्तनत के गवर्नर से कैसे मुकाबला कर सकता था। इसीलिए इस जंग में क्लेयोपेट्रा के भाई की हार हुई और वो दरिया नील में डूबकर मारा गया। अपने भाई की मौत के बाद क्लेयोपेट्रा मिस्र की मलका बनी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस दौर में मिस्र की सल्तनत में ये रिवाज था कि सल्तनत के वारसों को आपस में शादी करना वही पड़ती थी, लिहाजा इसी मजबूरी में क्लेयोपेट्रा को अब अपने दूसरे छोटे भाई से शादी करना पड़ी। भले ही क्लेयोपेट्रा ने अपने दूसरे छोटे भाई से शादी कर ली थी, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी इस जूलियस सीजर के साथ गुजारा करती थी कि जिस जूलियस सीजर ने उसे मिस्र का तख्त हासिल करने में मदद की थी। हालांकि मिस्र में रहने वाले ज्यादातर लोग क्लेयोपेट्रा और जूलियस सीजर के इस रिश्ते से खफा रहा करते थे, लेकिन भला वो एक मलका थी, मलका के सामने अपनी जुबान कौन खोल सकता था। कुछ वक्त के बाद जूलियस सीजर और क्लेयोपेट्रा की एक औलाद भी हुई थी। क्लेयोपेट्रा और अपनी इस नाजायज औलाद के साथ कुछ वक्त मिस्र में गुजारने के बाद अब जूलियस सीजर को एक जरूरी मिशन पर रोम वापस जाना पड़ा। जूलियस सीजर के रोम वापस चले जाने के बाद
अब क्लेयोपेट्रा अकेली रह गई थी। ये मौका देखकर क्लेयोपेट्रा के छोटे भाई यानी जो कि कानूनन क्लेयोपेट्रा का शौहर भी था, उसने अपनी एक छोटी बहन के साथ मिलकर क्लेयोपेट्रा को मारने का प्लान बनाया। लेकिन वो लोग क्लेयोपेट्रा को कत्ल करने में कामयाब हो पाते इससे पहले ही इस बात की खबर क्लेयोपेट्रा तक पहुंच गई और उसने चालाकी के साथ अपने इस भाई और छोटी बहन के खाने में जहर मिलवा दिया कि जो उसे मारने का प्लान बना रहे थे। जहरीला खाना खाने की वजह से दोनों ही भाई बहनों की मौत हो गई और इस तरह से अब क्लेयोपेट्रा ही मिस्र सल्तनत की इकलौती वारिस रह गई थी, जिसकी वजह से अब पूरा का पूरा मिस्र बिना किसी परेशानी के इसके कदमों में आ चुका था और वो मिस्र की मलका बन चुकी थी। मिस्र में सारे रास्ते आसान हो जाने के बाद अब क्लेयोपेट्रा ने रोम जाकर अपने दोस्त जूलियस सीजर से मुलाकात करने का फैसला किया। जब रोम पहुंची तो उसका इस्तकबाल एक मलका की तरह किया गया। लेकिन दोस्तों, परेशानी की बात यह थी कि रोम के ज्यादातर वजीर और जर्नल्स क्लेयोपेट्रा और जूलियस सीजर के इस रिश्ते से खफा रहा करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जूलियस सीजर एक औरत के हद से ज्यादा अहमियत दे रहा है और कहीं न कहीं जूलियस सीजर क्लेयोपेट्रा को ही पूरे रोम का हुक्मरान बनाना चाहता है और हम किसी भी हालत में एक औरत की हुक्मरानी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से कि शाही महल में रहने वाले ज्यादातर लोगों ने जूलियस सीजर और क्लेयोपेट्रा के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी थी। और फिर एक दिन वो भी आया कि जब बहुत सारे लोगों ने मिलकर जूलियस सीजर के ऊपर हमला कर दिया और उस हमले में जूलियस सीजर की मौत हो गई। जूलियस सीजर की मौत के बाद अब क्लेयोपेट्रा को ये खतरा सताने लगा था, कहीं रोम के शाही महल में मुझे और मेरे बेटे के जो कि जूलियस सीजर की नाजायज औलाद भी था उसको कत्ल न कर दिया जाए। इसीलिए क्लेयोपेट्रा ने अब एक नया मंसूबा बनाया। उसने रोम का एक ताकतवर जर्नल जिसका नाम मार्क एंटोनी था उससे मुलाकात की। जर्नल मार्क एंटोनी से मुलाकात करते वक्त क्लेयोपेट्रा ने वही किया जो उसकी हमेशा से आदत थी, यानी मार्क एंटोनी को भी अपने हुस्न का दीवाना बना दिया और मार्क एंटोनी के सामने ये शर्त रखी कि तुम किसी भी तरह से मेरे बेटे यानी जो कि जूलियस सीजर का एक नाजायज बेटा है उसे रोम का अगला बादशाह बनाओ। मार्क एंटोनी ने क्लेयोपेट्रा की दीवानगी में इसकी ये शर्त फौरन मान ली और रोम के मौजूदा हुक्मरान यानी जो कि जूलियस सीजर का असली बेटा यानी कि असली वारिस भी था उसी के खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मार्क एंटोनी जूलियस सीजर के रिश्ते में सगा दामाद था, यानी उसकी सगी बेटी का शौहर था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ उसने क्लेयोपेट्रा की दीवानगी की खातिर अपने सगे साले के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। दोस्तों, आप सभी लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता चलूं कि जूलियस सीजर की इस एक औलाद के अलावा कि जो कि क्लेयोपेट्रा से पैदा हुई थी और भी औलादें थी जो कि उसकी अपनी बीवी से थी और उन्हीं जायज औलादों में से ही उसका एक बेटा उसके मरने के बाद रोम का अगला बादशाह बना था और उसी के खिलाफ क्लेयोपेट्रा ने मार्क एंटोनी के साथ मिलकर बगावत की थी। मगर बदकिस्मती से क्लेयोपेट्रा और मार्क एंटोनी की फौज को जूलियस सीजर के बेटे की फौज से बड़ी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। उस हार के बाद जहां एक तरफ क्लेयोपेट्रा को कैद में डलवा दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ मार्क एंटोनी ने भी खुदकुशी कर ली। कैद हो जाने के बाद क्लेयोपेट्रा भी अपने इस हार को बर्दाश्त न कर सकी और आखिरकार उसने भी कैद के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ 39 साल की उम्र में ही खुदकुशी कर ली थी। इसकी खुदकुशी को लेकर आज भी ज्यादातर हिस्टोरियन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि उसने जहर पीकर जान दी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि उसने अपने आप को एक सांप से डसवा लिया था, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई थी। हालांकि दोस्तों, इस बात पर सब का इत्तेफाक है कि क्लेयोपेट्रा ने खुदकुशी ही की थी। दोस्तों, क्लेयोपेट्रा की जिंदगी भले ही उतार चढ़ाव से भरी हुई हो,
لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی ایک مضبوط اور طاقتور حکمران تھی، اور خوبصورتی کا عالم یہ کہ آج بھی جب بھی خوبصورت ملکاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کلیوپٹرا کا نام نہ آئے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیے کہ کلیوپٹرا کو تاریخ میں ایک فیشن آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی کلیوپٹرا جو کپڑے پہنا کرتی تھی وہ اس دور میں فیشن بن جایا کرتے تھے، اور اس کا یہ پہناوا مصر کے کئی صدیوں تک چلتا آ رہا تھا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی مزید ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والی گھنٹی کو دبا دیں۔ شکریہ۔